Before starting for new session, first of all, I would like to acknowledge the presence of our respected CS Dhananjay Shukla, President ICSI, CS Pavanji Tandak, VP, Vice President ICSI, past presidents, and respective HODs. In our efforts to harness the collective knowledge and going with the flow, we have with us CS Praveen Narang for our next session. He shall motivate and encourage to us all to believe in our abilities to overcome challenges and reach our full potential. CS Praveen Narang has a master's degree in business administration. He has extensive managerial experience spanning 33 years across, multiple verticals at the British Council, the Canadian High Commission, and the largest bank in America. He received several awards and recognitions, such as Leadership Excellence in Neighborhood Development Award at Washington, D.C., USA. I would now request our speaker to please join the dais. Big round of applause, please. I would now request CS Dhananjay Shukla, President ICSI, to welcome our guest speaker with a planter. No, not an issue. I understand. Thank you, sir. Over to Mr. Narang to take the session ahead. Thank you, sir. तेरी तो है अपनी तो धत तेरे की हाँ उसका देखो स्टाइल अपनी तो धत तेरे की की तो देख अपनी तो धत तेरी की ये टाइम है घर आने का। ये घर है, होटल नहीं। हाँ उसको कहते हैं लाइफ अपनी तो धत तेरी की guys, my boss is calling. हाँ विजय, Yes, sir. आज ही रात को ऑफिस जाकर सारा प्रेजेंटेशन प्रिंट आउट करो। Sir, right now? यस। बॉस के होते हैं थाट अपनी तो So, tell me guys. 2 minutes. Okay. Good evening. मेरे अकेले की आवाज आप सबकी आवाज से तेज है। ओके, एक बार दोबारा करते हैं। गुड इवनिंग। ओके, कितने लोग मानते हैं कि एक लीडर बनने के लिए जोश और उमंग होना जरूरी है? आप सब मानते हैं? तो एक बार दिखाओ ना दोबारा से। गुड इवनिंग। भारत माता की वंदे। अब पता चल रहा है, एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। इट इज रियल डिलाइट coming here and talking to future economy builders of India, right? It is you who are going to build our economy, where our country will go. All the professionals, they are the backbone of this. I will start my session now, and I'll show you few photographs. And the moment you recognize that person from wherever you are sitting, loudly say out the name of that person. So the first clue is, if we can go to the PPT, I'll show you a person. I'm not interested per se in person, but the trait he carries. Thank you very much. It didn't take long. In fact, I was going to give you clues that he carried a cane, a baggy pant, etc., etc. And Charlie Chaplin, if you know, was
movie actor in early 1900s, 1910, 1920, and we all are recognizing him after 100 years. Is that success or something else has success? You know, Charlie की कहानी मैं थोड़ी बहुत आपसे शेयर करूं. Charlie Chaplin was living in orphanage. उनकी मदर जो है उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया गया था so that वो कोई पाल ले उनको. 17 years में he started his career in movies, and in the first year itself his pay was $250 per week, and he produced 35 films, movies, as an actor, as a director, as a producer. And in next year, he started getting $1,250 per week. He was very famous. See it to it, and none of us have seen him speaking. Without a word, he left so much of charisma all across the world, and that is the topic of my talk today. When you are on top of the mountain, what is next? You go down or you climb the other mountain. जब आप किसी भी mountain अपने career में, अपने job में सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या? चार्ली चैपलिन जब इनकी movies बहुत अच्छी हो गई थी, 29 years के थे, तो सबसे बड़ा $1 million का इन्हें contract मिला for movies. बहुत famous हो गए थे, पर complacent नहीं हुए. मैं आज भारतीय कोई कलाकार की बात करूं तो सबसे फेमस सोचते हैं जैसे मान लो अमिताभ बच्चन, पर आप सोचिए कि आज से 100 साल बाद क्या अमिताभ बच्चन को जैसे आपने चार्ली चैपलिन को भी पहचान लिया कोई पहचान पाएगा? वो भी इंडिया में नहीं, यूएस में, क्योंकि हम सब यूएसए के एक आर्टिस्ट को इस तरीके से पहचान पा रहे हैं. इज दैट सक्सेस और समथिंग एल्स इज सक्सेस? सो द टॉपिक of my talk is, if you are on top of the mountain, you all are, then either you go down, because if you're on top of mountain, you go down, or you climb the other mountains. You know, when he used to produce movies, after that he used to go to the hall and see, not the movie, because movie तो उन्होंने बनाई है, he has produced it, but to see how people are reacting to it. मैंने ऐसे कौन से डायलॉग डाले थे जिसको सुन करके मैं सोच रहा था लोग हंसेंगे, और लोग हंसे ही नहीं. दूसरी तरफ मैंने कुछ ऐसे उसके अंदर काम किए थे जिनको मैं सोच रहा था कि कोई हंसेगा नहीं, और उन सब में उन्होंने हंसा किया. वो उस डेटा को लेके घर जाते थे, डाइसेक्ट करते थे, पता करते थे कि कौन सी ऐसी मेरी बातें हैं जिनके कारण जो है लोग मेरे से प्रभावित हो रहे हैं, और कौन सी ऐसी बातें जिनमें मैं सोचता था कि दे ऑल विल लिसन टू यू, लिसन टू मी, और वो नहीं हुआ. तो चार्ली चैपलिन gave us this. If you are on top of the mountain, hello, I want to hear from all of you. If you are on top of the mountain, that you all need to decide what is next mountain for you, because after that there is nothing else but downfall. So this is the first quality. I'll be talking about few people. This is the first quality, first trait which I wanted to show you. Okay, for leadership success, we have 5 pillars. If these 5 pillars are equal, we are successful. But if any of the pillar is less than others or is not equal, we are not successful. There are 5 pillars. The first pillar which I will share with you is, hello, is, can you read this for me? Physical health. If we are physically healthy, then ye name, ye fame, ye money kaam ki hai. If we are not physically healthy, then none of the things are of use to us. So the first pillar of leader's success is, hello, is? Right. Can you guess which one is the next pillar of success? There are 5 pillars I told you. Any guesses? Raise your hand and tell me. Hanji? Family. Mental health, yes. Mental health is the answer. एक बार ताली बजा दीजिए. Thank you very much. It is mental health. In fact, physical health, I wanted to share a data with you. HBR. What is HBR? Harvard Business Review. I don't know, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है. It's a management consultancy magazine. HBR did a review of Indian professionals, including chartered accountant and company secretaries, and they found out by the age of 50, 15% of professionals have a disease called slip disc. सुना आपने लोगों ने? आप अनफॉर्चुनेटली जब वो बैठे बैठे हम अब अपनी रीढ़ की हड्डी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बैकबोन से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एंड दैट इज द डिजीज व्हिच कम्स टू अस. इनफैक्ट दिल्ली के कितने लोग हैं यहाँ पे? दिल्ली
दिल्ली से? ओके। दिल्ली में तो शादियों में एक स्पेशल स्टॉल लगा होता है आप सब लोगों के लिए। वो चाइनीज मैग और किसी कंट्री का नहीं होता, वो होता है तवे की रोटी और पीली दाल। देखा आपने वो स्टॉल? बिकॉज हमने ये नेम और फेम गेन करने के लिए अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और जब टाइम आता है कि जिंदगी में जो लग्जरीज हमने इकट्ठी की हैं 50 इयर्स के बाद, उनको एंजॉय करें, लाइफस्टाइल डिजीजेस ले चुके होते। तो आज के बाद पहला पिलर सदा याद रखें। विच वन इज द फर्स्ट पिलर? And the second one is mental health. Let me share a story of a Lalaji. He used to live in Lakshmi Nagar, and एक दिन सुबह सैर करके आए और उनके सामने चाय का प्याला आ गया। He started drinking tea. उनका गोडाउन था ललिता पार्क में। ये ललिता पार्क जो है लक्ष्मी नगर के कॉर्नर में उधर है, पास में ही है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और उनके गोडाउन का जो गार्ड है वो भागा भागा आया, लाला जी आपके गोडाउन में ना आग लग गई है। लाला जी ने बोला तुमने फायर ब्रिगेड को फोन किया है? कहता हाँ सर, फायर ब्रिगेड आ भी गई है और काम बड़े अच्छे से चला रहा है, बुझाने का चल रहा है। लाला जी ने अपनी पूरी चाय पी, अपनी स्टिक को जैसे सैर करने के लिए लेके गए थे वो उठाई और अपने गार्ड के पीछे पीछे चल पड़े। उनके गार्ड ने बोला सर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, टेंशन नहीं हो रही? आपके गोडाउन में आग लगी हुई है और आपने वो चाय भी पूरी की पूरी पी और जैसे सैर करने गए थे वैसे मेरे पीछे आए। लाला जी ने बोला क्या मेरे वहां जल्दी जाने से कोई फर्क पड़ जाने वाला है? कहा नहीं, एक्चुअली सर आग बुझाने का काम तो तेजी से चल ही रहा है, एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल दोस पीपल हैव ऑलरेडी कम इन। तो लाला जी ने बोला फिर मैं अपनी मेंटल हेल्थ से क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? क्योंकि अगर मैंने अपनी मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो वो मेरी फिजिकल हेल्थ को भी लेके जाएगा, और अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो वैसा एक गोडाउन नहीं 6 गोडाउन और बना लूंगा। लेट्स क्लैप फॉर दैट लाला जी। एक गोडाउन नहीं 6 गोडाउन और बना लूंगा अगर मैंने अपनी मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। Any guesses for the third pillar? Hanji? Emotional, no. Financial is important, but is not the third pillar. There is no negative marking here, so you all can speak. Okay, peace of mind is important. That comes under mental health. So the third pillar of success, maybe you can connect with it, is spiritual health. स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ। जब हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, जब और कुछ जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो हम कहते हैं मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग, वी आर गेटिंग रिजुविनेटेड बाय द अलमाइटी, उसे हम किसी भी नाम से बुलाएं। स्पिरिचुअल हेल्थ। मैं आपके करोल बाग इंस्टीट्यूट जाता हूँ, वहाँ की एक बहुत अच्छी मुझे घटना याद है। वहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं सोपी सेशन वहाँ लेता रहा हूँ, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट शाम को ना सब ई रिक्शा करके जाते हैं, वह सब वापस मेट्रो स्टेशन तक। तो एक ई रिक्शा में 6-7 लोग बैठे और रास्ते में एक स्ट्रीट डॉग आया। वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड है, आप लोगों ने देखा, एक स्ट्रीट डॉग आया। तो उस ई रिक्शा वाले ने अपना पहिया जो है उस डॉग, जो स्ट्रीट डॉग था, उसके हाथ के ऊपर चढ़ा दिया। एक बच्चा उन्हीं में से उतरा, उसने बोला भैया रुको रुको रुको। उसने अपनी जेब से निकाल करके 10 रुपए दिए, जितना 10 या 20 रुपए जितने उसने मेट्रो स्टेशन जाने के देने थे, और उसने उस स्ट्रीट डॉग को लिया। उसमें गरम गरम खून बह रहा था, उसने वहीं पे उसको साथ लिया, एक ई रिक्शा और हायर किया, उसके हाथ पे पट्टी वट्टी बंधवाई और छोड़ दिया। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन रिलीजियस होना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल हेल्थ एंड रिलीजियस होना। स्पिरिचुअलिटी, स्वामी विवेकानंद का नाम कितने लोगों ने सुना है? उन्होंने कहा है नर सेवा ही नारायण सेवा है। इनफैक्ट हमारे रिलीजन में तो बताया भी गया है कि हम पेड़ पौधों को भी पूजते हैं, जानवरों को भी पूजते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी 1000 बार गुरुद्वारे मस्जिद मंदिर जाने से बेटर है अगर आप किसी ऐसे की हेल्प कर दें। तो थर्ड पिलर ऑफ सक्सेस इज, हेलो आई वांट योर कोलैबोरेशन। थर्ड पिलर, थैंक यू। फोर्थ पिलर आपने बता ही दिया, जिसके लिए हम सुबह शाम रात काम कर रहे होते। फाइनेंशियल हेल्थ, पैसे होना भी जरूरी है, बट इट कम्स आफ्टर दीज 3 पिलर्स। अगर शुरू के 3 पिलर हमारी लाइफ में स्टेबल नहीं है तो चौथे पिलर का कोई यूज नहीं है। सो फाइनेंशियल हेल्थ, पंजाबी कहावत है हमारे घरों में, जिसदे पल्ले दाने उसदे कमले भी सियाने। हाँ, जिसके घर में पैसा होता है उसके बुद्धू बच्चे भी समझदार गिने जाता है, और ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। 4 पिलर्स। कैन यू टेल मी द 5th पिलर? हाँ जी, वेल इट इज रिलेटेड, इट इज लव एंड अफेक्शन ऑफ नियर एंड डियर वंस। जिनको आप चाहते हैं या जो आपको चाहते हैं उनका प्यार होना। चेतन भगत का नाम कितने लोगों ने सुना है? चेतन भगत, राइट। चेतन भगत सेज देयर इज नो पॉइंट गेटिंग अ प्रमोशन ऑन द डे ऑफ योर ब्रेकअप।
ऐसी प्रमोशन लेने का कोई फायदा नहीं है जिस दिन आप जिनको चाहते हैं उनसे आपको अलग होना पड़ रहा है. So these are the 5 pillars of success, and we started with Charlie Chaplin, and the learning was, when you are on top of the mountain. Hello, when you are on top of the mountain. Thank you very much. The second, I'll go further. Have you seen, can you tell me which bird is this? Seagull नहीं है. No. बगुला भी नहीं है. Pelican, आपने नाम सुना है Pelican? Right. So Pelican, ये कैलिफोर्निया में वहाँ के बीचेस पे बर्ड पाया जाता है. सो बहुत सुंदर बर्ड है. दे आर वेरी गुड फिश कैचर्स. ऊपर से उड़ते हुए 100 फुट नीचे पानी में देख लेते हैं कि फिश कहाँ है और सीधा जा करके उसे पकड़ लेते हैं. एंड इससे रिलेटेड ये कहानी है, कैलिफोर्निया की वहाँ पे जो बीच है वहाँ पे बहुत सारे पेलिकन्स रहा करते हैं और जाके मछली पकड़ के लाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी. तो बहुत सारी वहाँ पे फिश पकड़ने वाली इंडस्ट्रीज भी लग गई. एक एक करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई और वो सारे भी फिश पकड़ने लग गए. और वो क्या करते थे, जो अच्छा चीज है वो ले लेते थे और उसके डिस्कार्ड्स जो हैं वो बाहर फेंक दिया करते थे. और पेलिकन्स जो वहाँ बाहर बैठे पहले समुद्र में जाके पकड़ा करते थे, उन्होंने तय किया why not eat the leftovers that they have thrown away. And these pelicans started eating whatever was left, and they stopped flying at all, they stopped catching fish at all. धीरे धीरे करके भूल गए, वो मछली पकड़ना ही भूल गए. इनफैक्ट इतने लेजी हो गए कि वहां बैठे बैठे वो मरने लग गए. तो वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई. भाई इतने अच्छे बर्ड्स हैं और ये हमारे कैलिफोर्निया की कोस्ट पे मर रहे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए. ये आलसी हो गए हैं, ये इनको फिश पकड़ने की आदत नहीं रह गई है, तो क्या करना चाहिए. उनकी मीटिंग में एक सजेशन आया कि कोई दूसरी कोस्ट से कुछ बर्ड्स लाए जाएं जो पेलिकन्स ही हैं, उनको जिनको फिश पकड़ने की आदत है, और इनके साथ छोड़ दिया जाए. एंड लेट अस सी वेदर दे लर्न और नॉट. एंड द सिमिलर थिंग हैपेंड. दूसरे वाले आए, अगले दिन सुबह भूख लगी, ये जो दूसरे फॉरेनर्स वहां आए थे ये तो जाकर के फिश पकड़ के ले आए. लोकल थे जो फिश पकड़ना भूल गए थे, आलसी हो गए थे. अब वो फिश पकड़ने वाली कंपनीज भी धीरे धीरे करके बंद हो गई थी. वो सारे के सारे आईटी की जॉब करने चले गए थे. सो वहां पे उन पेलिकन्स को छोड़ा जो नए वाले थे, और उनको देख करके पुराने वालों ने उड़ना सीख लिया. व्हाट इज द लर्निंग इन दिस? कैन यू टेल मी द लर्निंग बिहाइंड दिस स्टोरी? Embrace change. World is moving very fast. Technology, AI, robotics, हमारे द्वार पे खड़ा है. They are here to catch us. And if we do not change, something will change on its own. So I cannot tell you if things will change for better, but if you change, things will always become better. So always, we all need to learn how to bring change in what we do, because life is moving very fast. So change is the third learning which I wanted to share with you. The next learning, okay. Who can tell me who is this person? Any guesses? Huh? No, is Japanese. Akio Morita. His name is Akio Morita. Sony Corporation का नाम कितने लोगों ने सुना है? Sony. आई थिंक सभी ने सुना है. इंडिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको क्वालिटी का स्टफ लेना हो, आंख बंद करके ज्यादा प्राइस हो तो भी ही विल गो और शी विल गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट. एंड ही इज द फाउंडर ऑफ सोनी कॉर्पोरेशन. इनसे पूछा गया, सर आपके प्रोडक्ट सब लोगों से डिफरेंट है, एलजी, सैमसंग, व्यूअर्स इज minimum 10 to 15,000 more, but still people buy your products and not of those. What is the reason? So इन्होंने उस मीडिया वाले को बताया, reason is very simple. I ask more questions and I'm more interested in others. So the learning which I want to share, be interested rather than being interesting. मेरे पास कितने degrees हैं, कितने diplomas हैं, doesn't matter. Whether I'm interested in the other person, that is what matters for a leader. For a leader to have these qualities, it is very, very important for all of us. So the next learning is be interested rather than being interesting. इनका सीधा सा जवाब था, everyone is like me, but I asked more questions. Questions are more powerful than answers, is the learning which he shared with us. The next, thank you very much. Azim Premji was 22 years young when he was studying in USA and his father was running the business. क्या नाम है उनकी कंपनी का? Wipro. और उस समय ये Wipro क्या किया करती थी जब इनके फादर चलाते थे? Oil. They used to sell oil, right?
हाँ, डालडा भी कह सकते हैं। दे यूज्ड टू सेल ऑयल एंड जब उनके फादर का डिमाइस आया, इनको वापस बुला लिया गया एंड ही केम बैक और इन्होंने टोटल टर्न अराउंड लाया। जो उस समय 8 करोड़ की उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो अंदाजन सीधा 180 करोड़ की उसने प्रॉफिटेबिलिटी ला दी। तो एक बार इनके साथ फ्लाई कर रहा था, तो आई वाज टॉकिंग टू हिम, ही सेड प्रवीण, इसके पीछे एक स्टोरी है। उन्होंने मुझे वो स्टोरी सुनाई, क्या आप भी सुनना चाहेंगे? बस 4 लोग सुनना चाहेंगे तो एक बार ताली बजा के बता दो ना अपने लिए। हाँ, सो बी अवेक, राइट, ओके। सो इन्होंने बोला देयर वाज अ रैबिट की बस्ती, रैबिट्स। नाउ नया स्कूल खुला और बोला यू नो हम यहाँ पे रैबिट्स को हॉप करना सिखाएंगे और स्विम करना सिखाएंगे। दीज आर द 2 क्वालिटीज। प्ले स्कूल हमारे घरों के आसपास खुलते, सो वहां पे हॉप करना सिखाएंगे और क्या करना सिखाएंगे? स्विम। सो पहले दिन के बाद जब बच्चा घर में आया, जैसे हम सब के बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं और वापस घर में आते हैं, तो सबसे पहला माँ जो है वो सवाल क्या पूछती है? बेटा आज का स्कूल कैसा रहा? उसने बोला मम्मा मुझे हॉपिंग में तो बहुत मजा आया, लेकिन स्विमिंग मेरे बस की बात नहीं है। उसकी मम्मा ने कहा अच्छा बेटा बैग वैग रख, खाना वाना खा, शाम को देखते हैं। शाम को पापा रैबिट भी आते हैं घर में, मम्मा रैबिट साथ में बैठी होती है, तो पापा रैबिट भी मम्मा रैबिट से पूछती भाई पूछते हैं आप कैसा रहा आज बेटे का स्कूल? उसने बोला कि उसको यू नो हॉपिंग तो बड़े अच्छे से आती है, लेकिन स्विमिंग नहीं आई। ऐसा नहीं है कि स्विमिंग की टीचर अच्छी नहीं थी, वो अच्छी थी, लेकिन मैं हॉपिंग नहीं कर पाया। तो उसके माँ बाप रात को क्या डिसीजन लेंगे, क्या करना चाहिए? हॉप, हाँ एक्स्ट्रा क्लास, बिल्कुल ठीक है। एक बार ताली बजा दो भाई, मेरे दोस्त के लिए बड़े अच्छे से सुन रहा है, वेरी गुड। एक्स्ट्रा क्लास, स्विमिंग की 2-3 सेशंस रख दिए जाएं। दोस्तों एक रैबिट कहां तैरना सीखा है? हॉपिंग में। तो इन्होंने मुझे बताया फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अजीम प्रेम जी फोकस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ, एंड वी ऑल हैव स्ट्रेंथ्स इंडिविजुअली एज वेल एज आवर इंस्टीट्यूट, एंड वी शुड बिल्ड ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। एंड ये नहीं करना चाहिए कि हमारी जो वीकनेसेस है सारा फोकस उस पर डाल दें, क्योंकि सारा फोकस उस पर डाल देंगे तो वी विल नॉट बी डूइंग जस्टिस टू आवर सेल्स और टू आवर इंस्टीट्यूट। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स लेट अस फोकस ऑन आवर strengths. You may discuss with each other and you know the strength of your institute. The next learning which I want to, okay, ये तो आप पहचान लोगे कौन है? धीरूभाई अंबानी। धीरू अंबानी 17 इयर्स में इन्होंने दुबई और जेडा में एक पेट्रोल पंप में काम किया। वहां पे जो वर्कर्स थे उनकी चाय जो थी अंदाजन समझ लीजिए 5 रुपीस की मिलती थी, और जो डायरेक्टर्स थे, बड़े सीनियर लेवल के लोग थे, उनकी चाय 10 रुपए की थी। धीरूभाई अंबानी था तो वर्कर, ही वॉज अ वर्कर, बट ही यूज्ड टू ड्रिंक हिज टी where the directors were having tea. तो एक दिन उसके दोस्त ने पूछा क्या हमारे यहाँ पे चाय अच्छी नहीं बनती, यू गो एंड ड्रिंक योर टी एट द अदर प्लेस? उसने बोला चाय तो दोनों जगह सेम होती है, लेकिन वहाँ जो डिस्कशन होता है, जो बड़ी बड़ी प्लानिंग बनती है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो जो बात होती है, ऐसे लीडरशिप सेमिनार के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें होती है, इसलिए मैं फालतू पैसा दे करके वहाँ जाता हूँ। 5 रुपए की चाय की जगह 10 रुपए देना मंजूर करता हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिवली बिलीव करना चाहता हूँ चीजों में। पॉजिटिवली जब हम चीजों को बिलीव करते हैं तो वी ब्रिंग चेंज इन आवर लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन, वी हैव ना 2 सुपरवाइजर्स वर्किंग इन आवर माइंड। हमारे दिमाग के अंदर 2 सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। पहले सुपरवाइजर का नाम है जगतजीत सिंह और दूसरे सुपरवाइजर का नाम है जगत हार सिंह। ओके, तो अगर आप जगतजीत सिंह को टाइम दोगे, काम दोगे, वो ज्यादा काम करेगा, और अगर आप ज्यादा जगत हार सिंह को टाइम दोगे, बात करोगे, तो वो वही कराएगा। आपके ऊपर है कि वो क्या कराएगा। आई विल शेयर द डिफरेंसेस विद यू। आपके ऑफिस में, आपके सराउंडिंग में जगतजीत सिंह है या जगत हार सिंह है? जगतजीत सिंह says he always comes with a solution whenever a project is going. Jagat Har Singh always you will see coming with problems. Jagatjeet Singh will say, you know, let us do program, let us make some programs to do something, and Jagat Har Singh will say, they will find ways not to do it. The third one, Jagatjeet Singh says, आपने कह दिया तो करता हूं, और जगत हार क्या कहते हैं? ये मेरा काम थोड़ी ना है। आप सोच पा रहे हैं ये जगतजीत सिंह और जगत हार सिंह हमें कैसे प्रोग्रामिंग कर रही है? जगत सिंह कहते हैं चलो कुछ करते हैं, और जगत हार सिंह कहते हैं
कुछ होना चाहिए, पीपल शुड डू, मुझे नहीं करना, और लोग चेंज लाएं जो आनी है. Jagatjit Singh are part of team and Jagathar Singh make parts of team. Jagatjit Singh looks for achievements and Jagathar Singh looks for failures. पहले कब फेल हुआ वो वही देखते रहते. Okay, so these are few students, few points. जगतजीत सिंह ऑलवेज अ स्टूडेंट, सदा नया कुछ सीखने के लिए सदा तैयार रहते हैं, आगे बढ़कर के पार्टिसिपेट करते हैं. जगतहार सिंह थिंक्स ही नोज एवरीथिंग, मुझे तो सब कुछ पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है. जगत सिंह हैव क्लियर प्रायोरिटीज, वेयरएज जगतहार सिंह हैज नो प्रायोरिटी एट ऑल, कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है. जगतजीत सिंह विल डू परफेक्ट वर्क, 100% परफेक्ट वर्क, एंड जगतहार सिंह will do काम चलाओ काम के चलो हो गया निकल गया. These are the differences between these people. Strong willpower, Jagatjit Singh, and they have no willpower at all. So these were the differences. And who's this person? वैसे नाम भी लिखा हुआ है, Warren Buffett. He told us, let us have all OQPs around us. Can you tell me what can be the full form of OQP? Any guesses? Okay, I'll share that with you. The full form of OQP is only quality people. आप जिन लोगों के साथ रहते हो, मेरे को उन 5 लोगों से मिला दो और आपकी नेचर मुझे पता चल जाएगी. And that is what happens. If we are having quality people with us, we will talk of big plans, बड़े बड़े काम तय करेंगे. लेकिन अगर quality people नहीं है, तो we will drown with them. So you become who you surround with. जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी कंपनी में सक्सेसफुल लोग मिलते हैं, जो फेलियर्स होते हैं उनके साथ वो मिल करके रोते हैं सारे के सारे. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस. सो इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, यू नीड टू बिलीव पॉजिटिवली. मोर वर्क टू योर जगतजीत सिंह, और जगतहार सिंह को तो नौकरी से ही निकाल दो, है ना, ही इज ऑफ नो यूज. सो दैट इज द पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर. नेक्स्ट पॉइंट इज टेक ओनरशिप. लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अग्रवाल साहब. हो सकता है वो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स जो हैं उन्हीं की कहानी आई शेयर विद यू. अग्रवाल साहब कोटा में तैयारी होती है एनडीए की, वहां पे पढ़ने गए और वहां 2 दोस्त थे, दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एनडीए का एग्जाम एक साथ दिया, पास किया, दोनों की खड़क वासला में बुला लिया गया फॉर द ट्रेनिंग. वो दोनों के दोनों वहां गए, दोनों की तैयारी हुई, उसके बाद दोनों को सेकंड लेफ्टिनेंट बना करके, और जोधपुर में, जोधपुर कोई है, जोधपुर का नाम सुना है? जोधपुर फेमस किस लिए है? फॉर दी मिर्ची वड़ा और मे बी सैंड ड्यून्स, वहां पे खूब आगे मिट्टी के टीले हैं. सो जोधपुर से मैं दोनों की पोस्टिंग एक साथ हुई, और वहां पे पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर का टाइम चल रहा था उस समय में. और एक दिन इन सब की जो वहाँ के लीडर्स थे, जो वहाँ के ब्रिगेडियर्स थे, लेफ्टिनेंट्स थे, उन सब की एक मीटिंग हुई. बाहर ऊपर बिल्कुल धूल है और नीचे बंकर बना था, उसके अंदर मीटिंग चल रही थी. और मीटिंग जब खत्म हुई, सुबह के 2 बज गए थे, तो सब लोग अपने अपने घर चले गए. ये अग्रवाल साहब और इनके दोस्त जिन्होंने एक साथ पढ़ाई की थी, एक साथ एनडीए पास किया था, वो वापस अपने बैरक की तरफ जाने लगे, क्योंकि 6 बजे उन्हें सब लोगों की तैयारी करानी थी फॉर द वॉर. 2 किलोमीटर आगे थे और वहां पे जाकर के अग्रवाल साहब को याद आया, अरे वहां की लाइट तो हम जलती छोड़ आए. तो दोस्त ने बोला, सर क्या फर्क पड़ता है, हम इतना मिट्टी के अंदर पैर धस के अपने जा रहे हैं, और 6 बजे हमने दोबारा जागना है, थोड़ी देर सोने को तो मिल जाए. तो अग्रवाल साहब ने कहा, नहीं, अगर एनिमी को पता चल गया कि हमारा ये सीक्रेट प्लेस है, लाइट जलती दिख गई, तो यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी और बहुत नुकसान होगा. उसके दोस्त ने बोला, यार तेरे को कोई फर्क पड़ने वाला इससे नहीं पड़ने वाला ना, तो तू क्यों चिंता कर रहा है, लेट अस गो. अग्रवाल साहब ने कहा, नहीं, आई विल गो बैक and switch off the lights and then I'll come back. और ऐसा ही हुआ, अग्रवाल साहब वापस गए, उन्होंने उस बंकर की लाइट्स ऑफ की, वापस आए. उनका दोस्त जाकर के सो चुका था. ये बात आई गई होगी, दोनों ने एक साथ वीआरएस ली, दोनों के दोनों दिल्ली में सेटल होने के आ गए. अग्रवाल साहब ने अपनी कंपनी बनाई, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा. और उनके दोस्त ने पहले कुछ जगह पे जॉब की, और जब उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो घर पे बैठ गए. तो उनकी वाइफ ने बोला, आप अग्रवाल साहब से एक बार बात करो ना, वो इतना अच्छा इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपको भी कोई जॉब दे देंगे. तो उसने कहा ठीक है. तो अग्रवाल साहब के पास जाता है, बोलता है, देख यार, हमारी पुरानी दोस्ती यारी है, सो कोई आपके पास मेरे लिए अप्रोप्रिएट जॉब है तो बताएं. अग्रवाल साहब ने कहा, आ जाए यार, मुझे ऑपरेशंस मैनेजर चाहिए, यू कैन वर्क हियर. और उसके दोस्त ने भी साथ में काम करना शुरू कर दिया. वन फाइन डे दे वर बोथ लिविंग लेट फ्रॉम द ऑफिस, सो अराउंड 8 PM अग्रवाल साहब भी निकले, उनके दोस्त भी निकले, और वहां पर अग्रवाल साहब ने कहा, अच्छा तू भी लेट हो गया, आ जाए रे, चाय पीते. दोनों
अग्रवाल साहब के केबिन के अंदर बैठे चाय पीने लगे, तो उनके दोस्त ने बोला, अग्रवाल साहब ये किस्मत ही है ना कि आप वहाँ और मैं यहाँ हूँ। अग्रवाल साहब ने कहा मुझे समझ भी नहीं आया इसका क्या ये किस्मत ही है ना कि आज इस कंपनी के ओनर हो और मैं यहाँ आपके सामने नौकरी कर रहा हूँ। अग्रवाल साहब ने कहा मुझे तेरे को अब डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है। अग्रवाल साहब ने याद दिलाया कि तुझे याद है जब पाकिस्तान की हमारी वॉर हो रही थी? हाँ मुझे याद है। कहते तुझे याद है कि हमारी एक मीटिंग हुई थी? हाँ मुझे याद है। तुझे याद है कि वहाँ हम एक बल्ब जलता हुआ छोड़ आए थे? हाँ मुझे याद है। कहता तुझे ये भी पता है कि जब मैंने तुझे बोला था जा करके वो बल्ब इलेक्ट्रिसिटी का बंद करके आते हैं, तूने बोला था नहीं मैं नहीं चल रहा, तू चला जा। हाँ मुझे याद है। कहता मैं बस तुझे यही बताना चाह रहा था, तेरी मेंटेलिटी उस समय एक नौकर की ही थी, क्योंकि तेरा थॉट प्रोसेस वैसा ही है, और मेरी जो है मैं टेक ओनरशिप, मैं ओनरशिप में विश्वास करता हूँ, मेरी वो थी। आज की डेट में मैं इस सीट पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैंने एक ओनर की तरह काम करना सीखा है, और तू उस सीट पे इसलिए बैठा है कि तूने वो नहीं सीखा है। 1 रुपए का कॉर्पोरेशन का, अपने सीएस इंस्टीट्यूट का 1 रुपए का नुकसान अगर आपको अपना लगना लगे, और 1 रुपए का फायदा आपको अपना लगना लगे, सो यू आर द ओनर ऑफ दिस। बट इफ यू से नहीं यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप पे ऊपर फर्क पड़ेगा। सो ऑलवेज टेक ओनरशिप ऑफ द थिंग्स दैट यू डू, और वो दूर से पता चलती है, दूर से पता चलती है ना। लेट मी टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल, ये भी ओनरशिप से रिलेटेड है। एक बिल्डर थे और उनके वहाँ कारपेंटर काम किया करते थे। सो कारपेंटर को काम करते करते 25-30 साल हो गए। आफ्टर 30 ईयर्स सो उसने बोला सर मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, मैं अब चलता हूँ। तो बिल्डर ने बोला अच्छा ठीक है, चलो एक प्रोजेक्ट और पूरा कर दो, वो जो एक विला बन रहा है उसके अंदर कुछ कारपेंटरी का काम रह गया, वो कर दो। उसका मन तो नहीं था, रिटायरमेंट का टाइम था, पर फिर भी उसने बोला ठीक है आपने कहा तो मैं कर देता हूँ। और ऐसा ही हुआ, उसने वो काम किया, लेकिन शॉडी किया, क्योंकि दिल तो उसका था नहीं। उसने उतनी बढ़िया क्वालिटी के डोर्स नहीं बनाए, उतनी बढ़िया क्वालिटी के जहाँ जहाँ ग्रिल्स लगनी थी, विंडोज लगनी थी, वो नहीं बनाई। और जब वापस आया कि सर वो काम हो गया, ये लीजिए चाबी, तो जो बिल्डर थे उन्होंने बोला एक्चुअली ये चाबी मैंने तुम्हारे लिए है, वो घर मैंने तुम्हें ही देना था, तुमसे जो काम कराया, ये लो चाबी और तुम ही उसमें जाके रहो। तो उसके वर्कर ने सर पीट लिया कि यार अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये नहीं करता। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ, हाँ तालियां बजा रहे हो तो बचा सकते हो, राइट? ग्रेट लर्निंग, टेक ओनरशिप ऑफ वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, वी हैव टू बिकम ओनर ऑफ इट। इफ यू टेक ओनरशिप यू ग्रो इन योर लाइफ, बिकॉज इफ यू कैन नॉट टेक रिस्क you cannot grow. If you cannot grow, you can't be your 100%. If you can't be your 100%, you can't be happy. And if you can't be happy, then what is the life living for? अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं ले सकते तो आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप ग्रो नहीं कर सकते तो जिंदगी में जो आपको 100% अचीव करना चाहिए वो आप 100% अचीव नहीं कर सकते। और अगर आप जिंदगी में 100% अचीव नहीं कर सकते तो आप खुश नहीं रह सकते, और खुश नहीं रह सकते तो जीने का मजा ही क्या दोस्तों। इसलिए टेक ओनरशिप of the work that you do in your lives. It will reap high rewards for all of you. The next quality which I want to share with you, okay, which year? 2008. I wanted to share the example of this person. आपने नाम सुना है, कौन है? रतन टाटा, you know, लेट रतन टाटा, वेरी राइट। और वहाँ पे जब ये भीषण हुआ, कुछ आकर के लोगों, सब लोगों को वहाँ पे बंदी बनाया और मार भी डाला। सो रतन टाटा आफ्टर दिस वेंट टू ईच एम्प्लॉयज होम और उनकी फाइनेंशियल और इमोशनल हेल्प की। दैट इज द राइट काइंड ऑफ लीडरशिप दैट वी ऑल शुड हैव। ही पर्सनली ensured that all the employees of his are, you know, satisfied with the kind of compensation that they are getting, or emotionally I am able to add some value. And this is the quality which all the leaders have, mastering interpersonal skills. Interpersonal relationship होना बहुत ज़रूरी है। When people seen and valued, they don't just work for you, they work with you. जब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को, मेरी तरफ ध्यान दिया जा रहा है और कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, वो आपके साथ काम नहीं करते, आपके लिए काम करते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव वेरी गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। दिस इज अनदर लेडी, हु इज शी? इंदिरा नोई। आज की डेट में भी पेप्सी के सभी एम्प्लॉयज के परिवारों को वो पर्सनली लेटर लिखते
whenever something good happens in Pepsi. Personal letter to all the employees. She is a master in communication. हर प्रकार के communication 100% complete होता है. Interpersonal relationship के लिए बड़ा जरूरी है ये 5 pillars होना. We are talking about the first one is communication. Communication आपका 100% होना चाहिए. In fact हम बोलते हैं कि उससे ज़्यादा भी हो communication तो कुछ बुरा नहीं है. Okay, आपसे एक सवाल पूछता हूँ. ये मैंने पेन ये जेब में रखा. Okay. Now, what can be the meaning of this? Who can tell me? मैंने ये पेन जेब में रखा. I am done with the presentation. Okay, that can be one. Very good. Or who can tell me? कोई negative marking नहीं है. We all can speak. मैंने ये पेन जेब में रखा. What can be? हाँ जी. I'm not signing. Okay, I'm not signing, and I'm done with the presentation. हाँ जी. पकड़ पकड़ के बोर हो गए. Finally जेब में रख लिया. और I will use it whenever the time comes, or give me more. Okay, this is the evidence of ownership. The work is over. और कोई? Well, let me tell you, the real meaning of putting this pen in my pocket is बस यही है. मैंने पेन जेब में रखा है. बाकी सारे तो आप लोगों के अंदाजे हैं. Hello, I hope you are getting. You can clap for yourself, right? हम मैन्युपुलेट करते हैं. जब ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, हम सब उसमें अपना ज्ञान जोड़ देते हैं. And that is what happens in our life. ये पेन मैंने सिर्फ जेब में रखा, इसका मतलब यही है. इससे कुछ और नहीं है. But what we all did, किसी ने बोला I'm signing off, किसी ने बोला मेरी टॉक पूरी हो गई है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है. I have few more points for you. So very very important. उसको इंटरप्रेट नहीं करना है. जैसा कम्युनिकेशन आपके पास आया है अक्षरशः वैसा ही फॉलो करेंगे तो देयर विल बी नो डेविएशन. ये लिसनिंग भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए. इन कम्युनिकेशन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू योर पीपल हु रिपोर्ट टू यू और नॉट. द सेकंड वन इज ट्रस्ट. ट्रस्ट किस चीज से बनता है? कैन यू टेल मी ट्रस्ट किस चीज से बनता है? वी हैव टू बिल्ड ट्रस्ट राइट इन आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. आज मोदी को मानने के लिए कितने सारे लोग हैं, बाकी हमारे लीडर्स हुए उनको इतने सारे लोग थे. उन्होंने ट्रस्ट फॉर्म कैसे किया है? बीइंग ट्रू टू योर वर्ड. वेरी गुड. या बीइंग अ मैन ऑफ वर्ड. एंड दिस इज व्हाट. एंड यू आर ट्रांसपेरेंट. लॉयल. बीइंग लॉयल टू योर टीम. वेरी गुड. एंड ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है. इफ यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट, यू आर हाइडिंग सम ऑफ द थिंग्स, your people will not trust you. So if you want trust to happen, let everything be transparent. Very very important. The third one is empathy. आपने किसी को कोई काम दिया और भगवान ना करे उसके साथ कोई इशू हो गया, आपने वो इशू समझने के बगैर ही अगर उसको डांट लगा दी कि काम तूने क्यों नहीं किया, आई थिंक ही विल नॉट बी विद यू. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट काइंड ऑफ एम्पैथी. एंड देन रिस्पेक्ट. फॉर अर्निंग रिस्पेक्ट we need to work with them, not make them employees. And finally, collaboration. The time is of collaboration. We all need to work together to get bigger things in our life. Self-assessment. Okay. Now, only self-assessment. On a scale of 1 to 10, I want all of you to rate your ability to build and maintain strong relationship. Can you do that in the pads that you have? So, what do you think is your capability on this? How would you rate your ability for a good interpersonal skill, sir? Very good. So अभी आपको जज कराते हैं. I have a questionnaire. आज आपको आप चेहरा आप ही को दिखाते हैं. हाँ? We all will do. We have pads and pen, everyone. Okay. So we will do one activity after this. Before self-assessment, I have few clues. Number one is assess your relationships, which we are doing with the people who report to you. हमारी उनसे रिलेशनशिप कैसी है? Is it on the right path? या फिर सिर्फ काम की बात होती है and that is it? The second one, set specific goal. Schedule a weekly meeting with the people who are with you, who are part of your team. अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया, मैं बैंक की बात कर रहा था, Bank of America, I was working there. So every Monday morning, 1 hour we had a meeting, जिसमें हम आपस में अपने प्रोजेक्ट्स जो वीकली आ रहे हैं उनकी बात करते थे, प्लस इमोशनल भी कुछ किसी को शेयर करना वो किया करते थे. और वो हमारे लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बैंकिंग इंडस्ट्री में पाए गए. डू यू डू रेगुलर मीटिंग्स विद योर स्टाफ और विद योर पीपल?
और इज इट हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस? कंसिस्टेंट है या बीच में कुछ करके छोड़ देते हैं, है ना? कंसिस्टेंसी प्लेज अ मेजर रोल इफ वी आर देयर इन आवर लाइफ. ओके, कॉल फॉर, we all need to pick one relationship and we need to judge whether we have the kind of right relationship with him or not. हम जाकर के वापस अपने जहाँ जहाँ हम वर्क करते हैं वहाँ पे जाके हम कर सकते हैं क्या? एक बार जज करने की कोशिश करें. We will do that. Can you recognize the people who are standing with our PM? आनंद महिंद्रा और रतन टाटा जी, लेट रतन टाटा जी. अब मोदी जी के ऊपर ये इल्जाम बहुत लगता है बाय द ऑपोजिशन पार्टीज कि भाई अंबानी और अडानी, बट ये वो रखता है इसीलिए लगता है क्योंकि ही communicates with them very well. After every few months you will find them, and it is for the progress of India. It is not for any other reason that he liaises with all these kind of people. All of them are there. एयरटेल के ओनर भी हैं, भारती मित्तल और सब लोग हैं. ये सब के सब से वो रेगुलर एक महीने में मीटिंग करते रहते हैं, सो दैट ही इज इन टच विद द इंडस्ट्री. अगर भारत को रेवोल्यूशन लाना है, हमें बड़ी इकोनॉमी, ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो वी नीड टू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन एंड कम्युनिकेशन with all these industrialists. Leadership is not about being in charge, but it is all about taking charge of those who report to you. Very, very important for all of us. Okay? And we have talked about these pillars today. I will go for a questionnaire. I would request वो questionnaire लगाएंगे जो मैंने आपको बोला था. Okay, so we will do one questionnaire. अपना पेपर पेन निकालिए सब. We'll do one questionnaire. देखते हैं सबसे पहले कि आप में से कितने लोग assertive हैं, कितने aggressive हैं, कितने submissive हैं. So पेपर पेन निकालिए, पैड निकालिए. जैसा इन्होंने बोला अपने बारे में मुझे पता करना है, तो आज हम पता करते हैं कि आपकी नेचर assertive है, aggressive है या submissive है. ओके, सो जो बाद वाली है assertive वाली ले आइए. ओके, वी आर रेडी टू डू दिस. ओके, थैंक यू. Paper and pen. Let us see what kind of nature you have. Okay, who are aggressive people? If you can tell me. Aggressive कौन होते हैं? हाँ जी? Eagle. Okay. जो दूसरे की लिमिट में जाकर के भी कई बार बात करते हैं, एग्रेशन दिखाते. They have plus and minus points दो both. ऐसा नहीं कह सकते कि वो खराब होते. मैं ये बिल्कुल जजमेंट नहीं लेना चाहूंगा. But aggressiveness, assertiveness and submissiveness. Assertive जो होते हैं वो अपनी जगह पे रह के अपनी बात अच्छे से कह लेते हैं. Submissive जो होते हैं उनको लोग मैट की तरह यूज करके आगे बढ़ जाते हैं. Let us see आपकी पर्सनैलिटी कैसे है. आप सब तैयार हैं? सो अपने पैड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 36 तक लिखिए एंड यू विल बी गिविंग स्कोरिंग. ओके, हाँ बिल्कुल ऐसे ही 36 तक. लेट अस ऑल डू दिस. लेट अस ऑल डू दिस. 36 तक लिखिए, ऑल ऑफ यू. 1 से लेके 36 तक लिखिए. So there is a questionnaire. You need to give marking. लगा दो. आ नहीं रही है. It is not there. So you will be answering these 36 questions. इसके दो पॉइंट है. नंबर 1, जो पहले आपके दिमाग में आता है कि आप ऐसे हो, वही वाला आंसर लिखना. नहीं तो बाद में क्या होता है, हम पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम हमारी नेचर है कैसी. हमें तभी पता चलेगा जब हम पहली बार में जो दिमाग में आ जाए वही मार्क्स देंगे. और दूसरा, कोई भी दो क्वेश्चंस आपस में रिलेटेड नहीं है, सो उस हिसाब से मार्किंग मत कीजिएगा. ओके, हाँ जी, चालू करो भाई. सो assertiveness questionnaire, the last one. PDF में है. Yeah, that is what I am requesting him. Can we have it? So ये 1000 लोगों पे सर्वे किया गया था और उनसे 953 लोगों ने माना था कि हाँ हमारी नेचर ऐसे ही है और मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव इस तरीके से करना है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट मी सी वेदर इट इज कमिंग और नॉट.
राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो. यस, सोर्स ऑफ हाँ पहले आने तो दो. आई विल शेयर विद यू. आई विल शेयर दैट. अभी आया नहीं है. लेट मी शो इट टू यू. आई एम होपिंग इट कम्स. पीडीएफ रीडर है क्या हमारे लैपटॉप में? Otherwise I can give my laptop to you. Last one. It is opening. हाँ, okay. So ऊपर आप अपने पैड में लिखिए. अभी नीचे नीचे चलो, नीचे चलो. सर नीचे, नीचे चलो. ऊपर, सबसे ऊपर जाओ यहाँ से. ओके, जब मैं बोलूंगा तब आगे बढ़ेंगे. और जाओ. टॉप में जाओ. और ऊपर और ऊपर. बस. Okay. So you need to give marking like this. If this statement says totally untrue, give yourself 0 point. If occasionally true, कभी कभी वो आप वैसे कर लेते हो 1 point. Often true, ज्यादातर ऐसे ही करते हो तो 2 marks. और totally true है तो 3 marks. 0, 1, 2 और 3. इस प्रकार से अपने आप को आपने marks देने. पहला क्वेश्चन इज आई फाइंड इट इजी टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन. गिव योरसेल्फ वो 1 जो क्वेश्चन है उसके सामने 0, 1, 2 और 3 लिखिएगा. ओके. द सेकंड वन, आई कंफर्म टू द एक्सेप्टेड बिहेवियर इवन इफ इट इज नॉट व्हाट आई वुड चूज माई सेल्फ. मान लो यहां से शाम को अभी रात को घूमने फिरने का प्रोग्राम बन रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं और आप भी इसीलिए चले जाते हो क्योंकि बाकी सारे लोग जा रहे हैं, ऑल्दो आप जाना नहीं चाहते थे. क्या आप ऐसा कर लेते हो? 0, 1, 2 और 3. कीप गिविंग मार्क्स टू योरसेल्फ. थर्ड वन, द वॉल्यूम ऑफ माई वॉइस व्हेन फेस्ड विद कन्फ्रंटेशन इट इज एवरेज. जब कोई मेरे से बहस करने की कोशिश करता है तो मेरी आवाज तेज नहीं हो जाती या धीरे नहीं हो जाती, जैसी मैं बात कर रहा हूं वैसी ही रहती है. ओके. नेक्स्ट वन, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है? फोर्थ. थर्ड वाले जल्दी फोर्थ पे आ जाओ भाई. फोर्थ वन, आई कैन स्टेयर पीपल आउट. मैं अपनी आंखों से डरा सकती हूं या डरा सकता हूं. डू यू डू दैट? ओके. नेक्स्ट वन, आई वुड फील वुल्नरेबल इफ आई वाज सडनली पुट इन चार्ज ऑफ अ सिचुएशन. मेरे पसीने निकल जाएंगे अचानक अगर मुझे किसी सिचुएशन में इंचार्ज बना दिया गया. एक एग्जांपल से बताता हूं. मान लो मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया और मैंने आपको बोला किसी को भी कि आप आइए सर, you can do the rest of the talking, and he says there is no issue, I will do it. So then you will give marks accordingly. Okay. 0, 1, 2 or 3. Next one, I often wring my hands together when nervous. ऐसे करते हैं कि आप में से कुछ लोग करते हैं, तो give yourself your 0, 1, 2 or 3 occasionally. और आगे नेक्स्ट वन, I have to raise my voice to achieve results. मुझे अपनी आवाज को ऊंचा करना पड़ता है लोगों से काम कराने के लिए. 0, 1, 2 और 3. Then do not use sarcasm and ridicule obtained by way. मैं लोगों को ताने मार करके या उनको उनकी औकात याद दिला करके काम नहीं कराता हूं. Okay. Next one, I believe that how people behave is up to them. मैं सोचता हूं कि लोग जैसे बिहेव करते हैं ना, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनका इशू है. 0, 1, 2 और 3. ओके. ओके. अभी कहां तक पहुंचे आप? 9th. ओके. इसको थोड़ा और एनलार्ज कर दो, थोड़ा और एनलार्ज करो. एनलार्ज, बड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा करो इसे. हाँ, दिस वन. और करो, और करो. ठीक है. थैंक यू. अब आप देख पा रहे हैं? कैन यू सी इट? ओके. क्वेश्चन नंबर 10. ऊपर ऊपर करो. I find it easy to put forward my viewpoint even when other people are trying to put forward theirs. मेरे लिए बहुत आसान होता है अपना व्यू पॉइंट रख देना जब बाकी लोग अपना व्यू पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. आगे बढ़ जाओ. 11. Even if I do get nervous, I rarely fidget. मैं नर्वस हो भी रहा होता हूं या हो भी रही होती हूं, दिखाता नहीं हूं. 0, 1, 2 और 3. Next one. I do not. Question number? Sir, आप यहां से बाकी पिकअप कर लो. 10, 11. 12th. I am often critical of my own behavior. मैं अपने बिहेवियर का सबसे बड़ा सुधारक मैं खुद हूं. Okay. Next one.
I find it difficult to look people in the eye when there is a problem between us. मैं लोगों को आंख में आंख मिला करके बात नहीं कर सकता हूँ और हमारे बीच में प्रॉब्लम चल रही है जिससे भी. Next one, I often wag my finger or jab in their direction to emphasize a point. क्या आप ऐसा करके बातचीत करते हैं क्या? 0, 1, 2 और 3. अच्छा, कोई भी आंसर ऐसा नहीं है कि वो गलत है, सभी अपनी जगह ठीक हैं. आपने मार्किंग जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो करनी है. ओके, नेक्स्ट वन. I believe that people should behave in certain acceptable ways. मुझे लगता है कि सब लोगों को certain acceptable way में ही behave करना चाहिए. 0, 1, 2 और 3. I can be very persistent and usually obtain my own way. मैं लगातार लगे रह करके रास्ता निकाल ही लेता हूँ. Okay? Next one, 17. The hesitancy in my voice makes me nervous. मेरी जो आवाज़ है वो कांपने लग जाती है जब मेरे सामने कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है और उससे मेरी नर्वसनेस पता चलती है. ओके, इवन व्हेन लिसनिंग टू द व्यूज ऑफ अदर पीपल आई कीप साइट ऑफ माय ओन. मैं दूसरे लोगों की बात सुन रहा होता हूँ लेकिन उसके मैं अपने वाले बात को भूलता नहीं हूँ जो मुझे बीच में रखनी है. ओके, नेक्स्ट वन. इफ एनीवन, क्वेश्चन नंबर 19. When people try and obtain their way by making me feel sympathetic towards them, I ensure they stay responsible. जब लोग मेरे से sympathy gain करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैं sympathy तो देता हूं लेकिन उनको responsible भी बताता हूं कि आपको होना चाहिए. ओके, जैसे मान लो आपने ऑफिस के किसी रनर को बोला कि ये वाला चेक जो है बैंक में शाम को जाते हुए जमा करके जाना, और अगले दिन 11-12 बजे तक वो आया ही नहीं. तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या हो गया, लेट क्यों हो गया? तो उसने बोला, सर मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था. तो आप मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बारे में तो जानते हो लेकिन उससे ये भी याद दिलाते हो कि तेरे को मेरे को वहां से फिर फोन करना चाहिए था कि तू चेक लेके गया हुआ है. सो व्हाट इज द मार्क दैट यू विल गिव? 0, 1, 2 और 3. विच क्वेश्चन? 20. I believe that being open about how I feel assists in achieving clear communication. मुझे लगता है कि मैं खुल करके जब अपनी बात सबके सामने रखता हूं तो हमारे बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होता है. ओके, नेक्स्ट वन. 21. If anyone tries to bully me, I can give as good as I receive. मतलब ईंट का जवाब पत्थर से या दीवार गिरा के आप देते. 0, 1, 2 और 3. कैसे करते? I feel, question number 22. I can use sarcasm to let people know what I think of them. मैं दूसरों को उनकी औकात याद दिला सकता हूं कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं. मेरे पास ये पावर है, मैं करता हूं या नहीं करता हूं, is something else. Okay, next one. 23. I feel uncomfortable when people criticize me. जब लोग मेरी कमियां मुझे बता रहे होते हैं तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूं. Do this. 0, 1, 2 और 3. Okay, don't give extreme scores. कई बार occasionally और often true भी होते हैं. Okay, question number 24. When people try and force me to do something, I usually manage to achieve a compromise with we both are happy. ज़्यादातर लोग जब मेरे से जबरदस्ती कोई काम कराने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मैं बीच में कोई एक ऐसा रास्ता निकाल लेती हूँ जिससे हम दोनों खुश रहें. Next one. 25. I rarely see the validity of people's criticism. लोग मेरी कमी क्यों बता रहे हैं, मेरे को तो उसकी कोई वैलिडिटी लगती नहीं है. आप ऐसा कैसे? 0, 1, 2 और 3. 26. I tend to approach problems in a consultative, democratic manner. मैं लोगों से बातचीत करके डेमोक्रेटिक वे में कंसल्ट करके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालता हूं. 27. It would embarrass me to tell people how I really feel. ये मुझे बड़ा अजीब लगेगा बताते हुए कि मैं लोगों के बारे में क्या समझता हूं, जानता हूं. I'm sorry, I'm coming here every time. Question number 28. I find it easy to let people put forward their views in preference of my own. Very important. मैं पहले बाकी लोगों को बोलने का मौका दे देता हूं अपनी बात कहने से पहले. Okay. Next one. 29. If other people land themselves in difficulties, that is their problem. अच्छा, लोग गड्ढा देख करके भी उसमें गिर जाते हैं तो ये उनकी समस्या है. Okay. 30. I find it difficult to stand my ground in an argument with someone else. जब लोग मेरे से बहस करने लग जाते हैं ना तो मैं अपने ग्राउंड पे, अपने प्रिंसिपल पे खड़ा नहीं रह पाता हूँ या रह पाती हूँ. मैं कहता हूँ अच्छा भाई, बात खत्म. Okay, next one. 31. I have learned a lot from criticism. है ना? Listening to criticism. जब लोग मेरे बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, सुधारा है अपनी लाइफ में. 32. I feel easily
इंटिमिडेटेड बाय मोर फोर्सफुल पीपल, जब ज्यादा प्रभावशाली लोग आ जाते हैं तो मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती हूँ या हो जाता हूँ और उनको पहले मौका दे देता हूँ। नेक्स्ट वन 33, I believe that being open about one's emotion is a sign of weakness, so I rarely do it. मुझे लगता है कि लोगों के सामने अपने इमोशंस को दिखाना एक कमजोरी की निशानी है, चाहे खुश हो या नाराज हो, तो वो मैं दिखाता या दिखाती नहीं हूं। 33, I believe that being open about one's okay. 34, I find it easy to feel responsible for other people's problem. दूसरों की जिंदगी में अगर अच्छा नहीं चल रहा होता है, कई बार मैं अपने आप को उसके लिए दोषी मानता हूं या मान लेती हूं। ओके 35, I find that standing my ground usually encourages the other person to come to a compromise. मुझे लगता है कि जब मैं अपने विचारों पे अडिग रहता हूं तो सामने वाला अपने आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आ जाता है। एंड द लास्ट वन, I will make eye contact with people but not to such an extent that they are made uncomfortable by it. मैं उतनी देर तक ही आंखों से आंखें मिला के बात करता हूं जितनी करनी चाहिए। और आप में से किसी को पता है कि जब कोई पब्लिक स्पीकर हो तो कितनी देर का आई कांटेक्ट होना चाहिए? बाय द वे 0 to 3 seconds, 0 to 3 seconds. उससे ज्यादा देर अगर मिला रहे हैं तो there can be issues. So this is the kind of eye contact. So we all have done it. किसी का कोई रहा तो नहीं है? Okay. अब एक पेज और निकाल लीजिए और उसमें 6 columns and 12 rows इस प्रकार से बनाइए। 6 columns and 12 rows, 6 columns and 12 rows। और एक काउंटिंग नंबर में नहीं है तो प्लीज उस तरीके से मत लिखिए, जैसा सामने लिखा है वैसे ही लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर्स जो लिखे हुए हैं, 6 columns and 12 rows. All of us need to make 6 columns and 12 rows. Okay, and write down the counting like it is written on the screen. थोड़ा और भी बड़ा हो सकता है तो कर देना। हाँ, 1 2 3 4 5 8 7 6 9 10 12 11। बस रिजल्ट आने वाला है, आपकी नेचर आपको भी पता चलने वाली है, in few seconds only. Okay, so write these numbers like this. अब इसमें कुछ रोज कम है, जब आप ये लिख लोगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। सीक्वेंस में नहीं है, प्लीज वैसे मत लिखिएगा, जैसे यहां दिया है प्लीज राइट अकॉर्डिंग टू इट। हो गया? और ऊपर कर दो भैया। ओके, बस ये लास्ट है, बस 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 बस। अब नीचे, थोड़ा सा नीचे करो जी, और एक नीचे कर सकते हो। हाँ बस, ओके नीचे आ जाओ। नहीं नहीं, वापस 1 पे जाओ, 1 पे जाओ। अभी ठीक है? ओके, लिख लिया सर? सर पूरा कर दीजिए। ये सीक्वेंस में नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। सो जैसे ये लिखा है वैसे ही लिखिएगा। दोबारा बना लीजिए दूसरे पेज पे। हाँ, इसी में करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, 22 के नीचे भी जाएंगे, पहले ऊपर वालों को करने दो भाई, हर एक की स्पीड अलग है। We all have different speeds. So ये यहां तक हो गया, यहां तक लिख लिया। Shall we go down? और ऊपर कर दो। बस 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 बस। Otherwise you can click a photograph और फिर लिख लो, आपको आसानी हो जाएगी। कर लिया आपने? लिख लिया? Now start transferring the scores that you have given in the first sheet. Now start transferring the scores that you have given in the first sheet. जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सामने जो 1 में आपने पॉइंट दिए वैसे लिखिए, जो आगे सीक्वेंस में है वैसे ही लिखिएगा। You're doing it? Wonderful. Excellent. कर लिया? अरे वाह। तो डू दी टोटलिंग ऑफ द रोज। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो डू दी टोटलिंग ऑफ द रोज, कॉलम्स नॉट रोज, कॉलम्स, कॉलम्स। देयर विल बी 3 कॉलम्स, इन तीनों कॉलम्स की टोटलिंग नीचे कर दीजिए। I am happy to see everyone doing it, except for 2-3 people at the end, at the back, but others, everyone is doing it. तो
Questions? Let people write down and then you can do that. एक बार थोड़ा सा वापस ऊपर चले जाओ भाई, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, और बस. Now you can see. Have you done the totaling? किसी का हो गया है कॉलम्स की टोटलिंग? सर बताइए, फर्स्ट कॉलम का टोटल कितना है, सेकंड का कितना है, थर्ड कितना है? 13, 11 and 28. ठीक है, अभी वहीं रखना, चेंज नहीं करना. Anyone else who has done it? So आपका थर्ड वाली जो कॉलम है, you score the maximum. So we'll know what kind of nature is that. अभी बात करेंगे. मैंने आपको बताया नहीं है हमने वो किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है. 13, 14 and 27. So third again. Okay, 10, 7, 29. The third column again. You three are of the same nature. 13, 19, 16. आपका बीच वाला है, इसका मतलब your second column, you have the maximum numbers. Okay, very interesting. For running an organization, we need all three type of people. और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तीनों नेचर वाले यहाँ बैठे हैं. कई जगह पे एग्रेशन होना जरूरी है, कई जगह पे सबमिसिव भी होना जरूरी है, और कई जगह पे assertive होना जरूरी है. So let us see what all you score. हाँ जी. Oh my goodness, 33 in the third one. 17, 16, 33. That's the highest till now. 14, 19, 24. The third column. 27, पहले वाला column. Okay. And 33, oh my goodness, you are highly inclined towards the third column. We will know which third column is. 16, 10 and 20. 27, okay, the third. ज़्यादातर लोग third column वाले हैं. 23, 11 and 28. Okay, so let's, सबका हो गया तो एक बार मैं बता ही देता हूँ, है ना? Shall we? आपकी टेस्ट लैब की रिपोर्ट्स तो आ ही चुकी है. आप समझते हैं कि कितना ऊपर नीचे है, किस प्रकार से है. कुछ लोग अभी कर रहे हैं. Please do it fast so that we can see. Okay. पहले वाला कॉलम आप लोगों के हिसाब से कौन सी वाली नेचर वालों का है? इन तीन में से assertive, aggressive, submissive. Submissive? हेलो, आप सबको पूछ रहा हूं, पहले वाला कॉलम आपके हिसाब से कौन से वाले नेचर का है? Aggressive. Okay. Anyone else? अच्छा, कितने लोगों के फर्स्ट कॉलम के हाईएस्ट है तीनों में से मिला के? फर्स्ट कॉलम 1, 2, 3 and 4 and 5. 5 लोग ऐसे जिनके फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट है. ओके, सेकंड कॉलम में कितने लोगों के हाईएस्ट है? सेकंड कॉलम, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, 6. थर्ड कॉलम में कितने लोगों के हाईएस्ट है? मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट, वंडरफुल. एक बार अपने लिए ताली बजा लो यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कोर आया है. और इतने ही अनुपात में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोग चाहिए सर. You have the right kind of people. So let us see. पहले वाला कॉलम कौन से वाली नेचर का है? जोर से बोलो ना. Aggressive, submissive. Okay. दूसरे वाला कॉलम अपने वाली नेचर से टैली करके बताओ ना किसमें हाईएस्ट है आपके, उस हिसाब से. और तीसरे वाला assertive. Okay. So the answer is, let us go down. Okay. अपने उसी में नीचे लिखिए aggressive first column, submissive second column and assertive the third column. So now let us understand. पहले वाले कॉलम में कितने लोगों के 25 and above हैं? Anyone? Okay, 1, 2, 25 and above in the first column. अच्छे से हाथ उठाइए. Okay, आप सबके अंदर aggressive होने के कीटाणु पाए गए हैं. अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है. ओके, एग्रेसिव होने के पाएंगे. कितने वालों के फर्स्ट वाले कॉलम में 15 से कम है? अच्छा, ओके. कभी कभी आप सबमिसिव हो सकते हो, ये पहली रिपोर्ट से आया है. अभी बाकी दो कॉलम्स रहते हैं. सेकंड कॉलम में कितने लोगों के 25 एंड अबव है? ओके, सबमिसिव होने के कीटाणु हैं जी, कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ओके, थर्ड कॉलम में कितने लोगों के 30 से अबव है? वाह, वंडरफुल.
एक बार ताली बजा दो इन 30 वाले लोगों के लिए। सबसे पहले तो 30 एंड अबव, एक बार खड़े हो जाओ। 30 एंड अबव वाले कौन कौन है? वेरी गुड, 1 2 3। 30 एंड अबव, अरे वाह, कितने हैं सर? एग्जैक्ट 30, विल डू, बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 6। सर आपके यहां पे ये जिनके 30 एंड अबव है, इनकी क्वालिटीज क्या है? हु कैन टेल मी? they can, okay, they take initiatives. इनके पॉजिटिव पॉइंट्स की पहले बात करते हैं। एग्रेसिव लोग इनिशिएटिव लेते हैं। नुकसान ये भी होता है कि अकेले अकेले चलते हैं कई बार, है ना। और क्या होता है? सर बैठिए, प्लीज बैठिए। जिनके इसमें एग्रेसिव पीपल कई जगह पे होने जरूरी है। अगर एग्रेशन नहीं है किसी भी काम करने का, तो फिर हम ढीले पड़ सकते हैं। और दूसरे वाले कॉलम में सबमिसिव नहीं होना चाहिए, और थर्ड वाले में वी ऑल नीड टू बिकम असर्टिव। अच्छा, अगर आप सबमिसिव हो और एग्रेसिव हो और आपको असर्टिव बनना है, यानी अपनी बात अच्छे से रखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो असर्टिव लोग हैं उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सो इफ यू आर विद असर्टिव पीपल, यू बिकम असर्टिव। ये 1000 लोगों पे सर्वे कराया गया था, जैसे मैंने बताया 950 समथिंग के आसपास लोगों ने बोला था हाँ हमारी नेचर ऐसे ही है। लेकिन बाकी लोगों ने बोला था इस समय मैं जिस माइंडसेट पे हूं उस हिसाब से मैंने मार्किंग की है, एक बार दोबारा करना चाहूंगा। तो मे बी आई कैन ईमेल दिस टू ऑल ऑफ यू इफ यू वांट टू रिपीट इट समडे एल्स। लेट्स गो बैक to the PPT. Okay, so these were the scores that we have according to our assertiveness. We all need to become assertive. And finally, we discussed these points today. Number 1, when you are on top of the mountain, let's repeat, when you are on top of the mountain, change the mountain. So think over it. What is the next thing that you want to do in this life? You have already reached the top of your profession. Now what is next? Right? Next one. Embrace change. Be interested rather than being interesting. Focus on your strengths, not on weaknesses. Weakness will go on. उसको धीरे हल्का ही रहने दीजिए। फोकस स्ट्रेंथ पे करेंगे तो 1 या 2% एक्स्ट्रा एफर्ट करने से 100 या 200% रिजल्ट मिलता है। पॉजिटिव बिलीविंग, बी विद OQPs। OQP का फुल फॉर्म ओनली क्वालिटी पीपल। टेक ओनरशिप, very very important for all of us to take ownership of what we do, how we do. अगर हम ओनर की तरह बिहेव करते हैं, ये हमारा लाइफ स्किल है, हमारे अंदर आ जाता है, तो सब जगह एक जैसा करते हैं। एंड फाइनली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। आप सबके लिए वो देखो पास खड़ी मंजिल, वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से तुम्हें बुलाती है, साहस से चलने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। थैंक यू वेरी मच अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Thank you, Mr. Narang, for sharing your motivating wisdom. It was really an interactive session as you engaged everyone in the interesting activity. Thank you, sir.